Hello everyone, myself Rahul Kumar Sinha. Today I am going to explain a method of searching. Okay, so let's begin. There are basically a 5 type of method of searching. Okay, one of them is strip method. In this method, the whole crime is marked as the rectangular form. Okay, then after marking of rectangular form, we have to divide that crime scene into vertical strips. Okay, and each search is started from one side of the strip and goes on for the each strip till the last. मीन्स क्या करते हैं कि कोई भी क्राइम सीन को हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में मार्क करते हैं, राइट. देन आफ्टर उसको हम डिवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स, मीन्स वर्टिकल रेक्टेंगुलर फॉर्म अगेन. ओके, देन हमारा जो सर्च जो है किसी भी एक इंड से स्टार्ट होगा, एज यू सी इन द इमेज, किसी भी एक इंड से स्टार्ट होगा, ठीक है, मूविंग वर्टिकली. देन इट्स गोज ऑन द सेकेंड पार्ट, दैट इज सेकेंड स्ट्रिप. ओके, देन searching of evidence, then it's moving to the third and last. Okay, it is also known as the rectangular method. Okay, this can be performed by one or a multiple investigator working parallelly. Means इसमें एक या दो investigator भी यूज हो सकते हैं. In case of one investigator, all crime scene have to search by one IO and it have to be starting from one end and ending at other end. Okay, and in case of two investigator or more than one investigator, they started searching of evidence parallelly and move likewise, and in case of first or a single investigator, like in this type of method boundaries are well defined. ओके, मीन्स कि हमारा जो बाउंड्री होता है प्रॉपर डिफाइन होता है कि हमारा जो सर्चिंग का एरिया है एक इतना जो है ये रूम है या फिर जो भी रेक्टेंगुलर पोर्शन है या फिर जैसा भी पोर्शन है, एक वेल डिफाइंड हमारा एरिया होता है, उसके अंदर ही हमें सर्चिंग करना होता है, राइट. एंड द लिटिल स्पेस बिटवीन द स्ट्रिप इज पॉसिबल. इस केस में क्या होता है कि जो स्ट्रिप के बीच में, जैसे कि आयो जो एक पाथ फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उस बीच में जो स्ट्रिप होते हैं उसके बीच में कुछ ना कहीं स्पेस बचते हैं, ठीक है, विच एवॉइड द कवर ओवरलुकिंग ऑफ द एविडेंस. मीन्स कि जिसमें कि ओवरलुकिंग या एविडेंस का चांस जो है कम होता है या फिर नहीं के बराबर होता है. ओके, नेक्स्ट इज ग्रिड मेथड. This is basically a modified or a improvised version of the strip method or a rectangular method. Okay, in this method also the first crime scene is marked in the rectangular form. Okay, then they are divided into vertically strips. Okay, then horizontally strips, right, as you can see in the picture. And then investigator have to start searching from one end. They will move horizontally like this way. Okay, then at the top he have to turn its strip and start vertically, right, then follow the same path as in the horizontal path, as you can see in the image also. ठीक है, there must be performed by the multiple investigator working perpendicularly. मीन्स इसमें क्या होता है कि दो इन्वेस्टिगेटर जो है परपेंडिकुलरली काम करते हैं या फिर एक भी काम कर सकते हैं अगर किसी इन्वेस्टिगेशन को करने में एक ही आयोग को जरूरत हो तो, राइट. इसमें क्या है कि जो है ना ये पार्टिकुलरली एक ग्रिड फॉर्म करता है. जब हम इसको क्राइम सीन को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जब हम डिवाइड करते हैं तो एक ग्रिड पोर्शन फॉर्म होता है, स्क्वायर पोर्शन फॉर्म होता है, जो कि दो बार ट्वाइस इन्वेस्टिगेट होता है और ट्वाइस बार सर्चिंग होता है, उस चीज़ का एग्जामिन दो बार होता है, ठीक है. सो इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ सर्चिंग, राइट. इट ऑल्सो हैव द वेल डिफाइंड एरिया as in case of strip method, but it is more effective than the strip method because each and every square are examined twice at right angle, right. And although it required a more time because there is a thorough search of the evidences. So as there is a conjunction, there is the assumption that the grid method is one of the best method for searching of evidences. Clear? Next is spiral method, that is third method. In this method the whole crime scene is marked as the circle or a oval with its center or a focal point at the center of the circle, right, and the search is started from the center in a spiral manner as you can see in the picture. Means जो भी आयो जो है सेंटर से एक स्पायरल मैनर में सर्च जो है स्टार्ट करेगा क्राइम सीन का, राइट.
इट मे बी फ्रॉम इनवर्ड आउट मीन्स अंदर से बाहर की तरफ मूव कर सकता है, और फिर आउटवर्ड इन मीन्स किसी भी बाउंड्री से या फिर पेरिफेरी से स्टार्ट करेगा और सेंटर की तरफ मूव करेगा, राइट। दोनों कंडीशन इसमें पॉसिबल हो सकता है। और इसका जो है एरिया जो है बाउंड्री जो वेल डिफाइंड नहीं होता है एज कम्पेयर टू द स्ट्रिप मेथड एंड द ग्रिड मेथड, क्योंकि हम इसमें एक इमेजिनरी सर्कल दिमाग में रखते हैं कि इतना एरिया को हमें सर्च करना है, राइट। तो वो जो है वेल डिफाइंड नहीं होता है एज कम्पेयर टू द ग्रिड मेथड, एंड कैन वर्क इनसाइड एंड आउटसाइड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। एंड चांसेस ऑफ ओवरलुकिंग ऑफ एविडेंस इज वेरी लेस, क्योंकि इसमें जो है ना है चांसेस, बट उसके कंपेयर में देखा जाए और जो भी मेथड्स हैं इसके कंपेयर में चांसेस कम है। ऑल्दो इसमें जो है स्पेस बचते हैं, ओवरलुकिंग के चांसेस बनते हैं, बट ग्रिड से इसमें चांसेस ज़्यादा हैं ओवरलुक होने के, और ग्रिड जो है बेटर है इससे, बट इसमें भी चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट इज व्हील मेथड और रे मेथड। इन दिस मेथड द इंटायर क्राइम सीन इज मार्क एज द सर्कल सेम एज द स्पाइरल मेथड। देन द सेवरल इन्वेस्टिगेटर स्टार्ट इन द सेंटर लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री और फ्रॉम द बाउंड्री टू द सेंटर। मीन्स क्या होता है कि इसमें भी क्राइम सीन को एक सर्कल के फॉर्म में हम मार्क करते हैं, ठीक है। और मोर देन वन इन्वेस्टिगेटर और वन इन्वेस्टिगेटर सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, ठीक है, मीन्स बाउंड्री की तरफ क्या होता है मूव करता है और सर्चिंग एविडेंस का करता है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि बाउंड्री से सेंटर की तरफ सर्च कर, ठीक है। ये एक इन्वेस्टिगेटर के द्वारा भी किया जा सकता है और मोर देन वन इन्वेस्टिगेटर के द्वारा भी किया जा सकता है। वन इन्वेस्टिगेटर के टाइम पे हर बार चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा, हर पाथ को रिपीट करना पड़ेगा एक के द्वारा, और अलग अलग केस में हमारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। मीन्स जब हम मोर देन वन इन्वेस्टिगेटर हमारे पास हो तो, ठीक है। इन व्हील मेथड और रे मेथड बाउंड्री इज ऑल्सो लेस डिफाइंड सेम एज लाइक द इन द स्पाइरल मेथड, एंड एविडेंस बिटवीन द इन्वेस्टिगेटर कैन बी ओवरलुक, ठीक है। जो भी स्पेस बचते हैं इन्वेस्टिगेटर के बीच में, वो जो स्पेस है उसमें जो है एविडेंस रहेंगे तो ओवरलुक के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ग्रिड मेथड। क्लियर। नेक्स्ट इज जोनल मेथड और अ क्वाड्रेंट मेथड। इन दिस मेथड बेसिकली द इंटायर क्राइम सीन इज डिवाइडेड इनटू क्वाड्रेंट और अ स्क्वायर और अ ब्लॉक, ठीक है। कोई भी एक बड़ा सा क्राइम सीन है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं ब्लॉक के फॉर्म में या फिर स्क्वायर के फॉर्म में उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सपोज कोई बड़ा सा हॉल है, उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 ब्लॉक बना दिया, और 4 ब्लॉक में एक एक आयो को हम असाइन कर सकते हैं, और उस ब्लॉक में इंडिविजुअल ब्लॉक में अलग अलग तरह का मेथड अप्लाई हो सकता है। सपोज किसी एक में स्ट्रिप मेथड अप्लाई हो रहा है, किसी में स्पाइरल मेथड अप्लाई हो रहा है, क्लियर है, किसी में ग्रिड मेथड यूज हो रहा है, क्लियर है। मतलब हम डिफरेंट तरह के मेथड इसमें यूज कर सकते हैं, या फिर सब में सेम मेथड भी यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट आईओ से भी हम इन्वेस्टिगेट मतलब जो सर्चिंग है या फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसमें मोर देन वन सर्चिंग ऑफिसर हो सकते हैं, ठीक है। और जो कि इसमें जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, और ये इसका मेन प्रेफर हम तब करते हैं जब कोई क्राइम सीन हमारा बहुत बड़ा हो, लार्ज एरिया हो, क्राइम सीन हो, तो उस केस में मोस्टली जो है हम जोनल मेथड को प्रीफर करते हैं। क्लियर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या क्या मेथड्स होते हैं सर्चिंग के। क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।